Good morning. Am I audible? Am I audible? শুনতে পাচ্ছ তোমরা? Hello. Hemanshu, Satyajit. Hello, hello. Okay. Okay. So let us start. So good morning. This is our second part on the project management. Okay, which is your network diagram. See, in the previous lecture, what we have learned, there are different tools for managing the project. Okay, how we can manage a project. So there are several methodologies, or we can say there are several tools. Okay, say for example, Gantt bar chart, milestone chart. Okay, and this is the third tool, which is the network diagram. Okay, so there are many disadvantages or limits of those two methods, which has been tackled in this method. Okay, so today we will be learning what do we mean by the network, network method for project management. Okay, under this topic we will be learning what are the advantages of this method. Okay, and before going into the details, see we have to draw like this network. Okay, so we cannot directly start drawing this network. Okay, first we need to understand what are the different parts or components of this network diagram. Okay, we can say what are different elements. So we will discuss what are the different elements of the network diagram, what are their types, and how to draw. We cannot randomly draw this network diagram. Okay, we need to follow some rules and regulations or steps to draw the network in a proper way. Okay, so we will see what are those rules. We have to follow those rules also. Okay, then only we can get a good network diagram. Okay, so what are the advantages? See, advantages means in the previous two tools there was disadvantage was what? They do not show interrelationship between the two activities. Okay, that means suppose painting cannot be done before we complete plastering, right? Or before we complete whitewashing. First we need to do plaster, then whitewash, then painting, right? So there is some interrelationship. If one work completes, then another work starts. Then if that work completes, then only we will go for the third work or third activity. So there will be some relationship. Okay, it can be clearly, see for example here, see this activity will end here, then only this activities will start. Okay, whereas this capital D or the D activity will start when B activity will complete, whereas this B activity will start when A activity will complete. Okay, so these are the interrelationship. Which can be clearly shown, the interrelationship between the activities can be clearly seen in this network diagram, whereas in the previous two tools we cannot see those relationship, right? That was a disadvantage of those two tools, bar chart and milestone chart. But in this we can clearly see that, see, D will only start when B will be completed, and B will only start when A have to complete. Okay, then only we can say that these three are interrelated. Okay, we cannot just jump and start doing D activity. First we need to do A, then B, then only we can go for D. So in the arrow method, see, in this network method we can clearly see that relationship. Okay, so this is the one advantage, that it defines the interrelationship between the two activities. Okay, integration of small activities is possible. See, here we have, this whole project has been divided into several activities. So we have what we have done, we have integrated these activities. Okay, it is possible in network diagram, where it was impossible in your previous two tools. Okay, methods of project management used in complicated project. Time interval between the two activities can be known. Okay, what will be the
time taken to complete that particular activity. Say for example, activity A needs this much time. It can be clearly seen in this network diagram. Okay, we will see how in later lecture or in the later slide we will see. Okay, this controlling can be done. How controlling can be done? Say for example, यहाँ पे देखो कि say suppose this is the activity, okay, and this is the duration of the activities. Okay, this is the activity, this is the duration of the activities. So इसमें दिया है क्या क्या, ये 2 दिन में कंप्लीट होने वाला काम है. ओके, इफ देयर इज एनी डिले, अगर लग रहा है कि यहाँ पे देखो 2 दिन से 4 दिन में कंप्लीट होने, मतलब ये टाइम लग रहा है 4 दिन. ओके, एक्चुअली लगना चाहिए था 2 दिन, बट इट इज टेकिंग 2 more days ड्यू टू सम डिले, ड्यू टू सम एरर, ड्यू टू सम एक्सीडेंट, व्हाटएवर. ठीक है, तो हम ये मैनेज कर सकते हैं, ये वाला डायग्राम से भी हम देखकर मैनेज कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे 2 दिन में काम खत्म होना चाहिए था लेकिन 4 दिन लग रहा है, तो हम कैसे ये 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, कितना जल्दी हम 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं. सो वी नीड टू प्रोवाइड रिसोर्सेस. ठीक है, यहाँ पे ज्यादा मैन पावर दो, ज्यादा मशीनरीज दो, राइट, ज्यादा मटेरियल तो ठीक है कि ज्यादा मैन पावर और ज्यादा मशीनरीज यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर देंगे, जिससे कि इक्विपमेंट्स डालेंगे, जिससे कि ये वाला काम एक्टिविटी जल्दी जल्दी खत्म हो विदाउट डिले. ओके, तो कंट्रोलिंग का मतलब तो वही है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है. ठीक है, ऑनगोइंग एक्टिविटी हो रहा है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इटसेल्फ वी आर मैनेजिंग, कंट्रोल कर रहे हैं इसको, राइट. सो ऐसा भी पॉसिबल है इन नेटवर्क डायग्राम. तो कैसे देखेंगे हम लोग, सपोज यहाँ पे देखो, तो हम मैन पावर कहाँ से लाएंगे, यहाँ से कोई भी एक्टिविटी से लाएंगे जहाँ पे ज्यादा दिन लग रहा है. ठीक है, तो हम लोग सपोज यहाँ पे 5 दिन लग रहा है, तो यहाँ से हम थोड़ा बहुत मैन पावर को लेकर इसमें शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए. ओके, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं. नाउ can be used in research and development project. See, research and development project is what? It is not a deterministic project. Deterministic मतलब कि सपोज हम बोलते हैं कोई काम स्टार्ट किया, वो बोलेगा कि 10 डेज में ही खत्म होगा. ठीक है, कोई रिसर्च वर्क चल रहा है, राइट. तो रिसर्च का मतलब ही है कि अनसर्टेन. इट मे बी मतलब इट मे टेक शॉर्ट टाइम ऑल्सो, इट मे टेक लॉन्ग टाइम ऑल्सो, राइट. ज्यादा टाइम भी ले सकता है, कम टाइम भी ले सकता है, वो अनसर्टेनिटी के ऊपर है, राइट. तो क्या होता है कि ड्यूरिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर व्हाट, प्रोबेबिलिस्टिक. जैसे रॉकेट को लॉन्च करना, दैट इज वेरी, क्या बोलते हैं, उसमें बहुत एकदम कॉम्प्लिकेटेड टाइप का प्रोजेक्ट है, रॉकेट को लॉन्च करना. ठीक है, बहुत सिस्टम बाय सिस्टम हमको करना है, राइट. तब जाके सही ढंग से का प्रोजेक्ट में भी वी कैन यूज दिस मेथड. ठीक है, सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक जो कि मतलब है कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तुम लोग, तुम्हारा बहुत ईयर का एक्सपीरियंस है, राइट. तुम 10 साल से तुम काम करते जा रहे हो. ठीक है, वैसा टाइप का सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट करते जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, एक टाइम में आके बोलोगे कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए लगभग ये टाइम लगेगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि एक क्या बोलते हैं, ये अनसर्टेन नहीं है, राइट. रिपीटेटिव टाइप का प्रोजेक्ट है, तुम करते जा रहे हो, तो एक टाइम में होगा कि यू कैन गेस कि इतना टाइम में ये खत्म हो सकता है, ये गेस हो सकता है. सो दैट इज डिटर्मिनिस्टिक. ठीक है, और प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब है कि नया प्रोजेक्ट कर रहे हो, नया टाइप का प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिसमें टाइम ऑफ कंप्लीशन इज अनसर्टेन और प्रोबेबिलिस्टिक, राइट. जैसे हम बोले थे ना, रिसर्च डेवलपमेंट, कुछ नया तुम इनोवेटिव कुछ कर रहे हो, तो तब कंप्लीशन, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो प्रोबेबिलिस्टिक है, वो हम लोग एकदम फिक्स नहीं कर सकते हैं इतना ही टाइम लगेगा बोल के, राइट. सो इन दैट प्रोजेक्ट आल्सो वी कैन यूज दिस टेक्निक, दिस टूल, नेटवर्क मेथड. ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस. नाउ कम्स द एलिमेंट्स. हम बोले थे व्हाट आर द एलिमेंट्स. अच्छा, इतना दूर क्लियर है टिल नाउ? यस मैम. Yes, ma'am. ओके, नाउ कम्स द एलिमेंट. अब देखो ये वाला, ये टॉपिक इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड यहाँ से बहुत, क्या बोलते हैं, मार्क तुम ऑब्टेन कर सकते हो, बहुत ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं अगर तुम ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो. ओके, तो दूसरा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नेटवर्क डायग्राम इज एन इवेंट. ठीक है, इवेंट इज द मोमेंट एट विच एनी एक्टिविटी और टास्क स्टार्ट्स. मतलब कि है कि जैसे तुम अभी 9 बजे से क्लास स्टार्ट हुआ,
ठीक है, एक इवेंट हो रहा है ये, ठीक है, 9 बजे से एक क्लास स्टार्ट हो गया, दैट इज एन इवेंट, ओके। अब ये क्लास चल रहा है, दैट इज एन एक्टिविटी, ओके। अब 10 बजे ये क्लास खत्म होगा, तो मतलब अब वहां से तुम्हारा दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, ओके। 10 बजे से अब दूसरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, सो दैट इज अनदर इवेंट, ओके। अब वो क्लास भी चलता जा रहा है, मतलब दैट इज एन एक्टिविटी, ठीक है। अब बोलो तो जब क्लास स्टार्ट होता है उसमें क्या टाइम लगता है? उसमें कुछ टाइम लगता है? क्लास स्टार्ट हो गया बस, इट ऑकर्स एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट, मतलब कि 10 बजे से स्टार्ट हुआ बस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये लिखा है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ एन एनी प्रोजेक्ट और दी एक्टिविटी, ठीक है। जैसे कि ये देखो ये एक इवेंट हुआ, यहाँ से एक्टिविटी वो स्टार्ट हो रहा है, अब दूसरा इवेंट स्टार्ट, ये खत्म होगा ये वाला एक्टिविटी, तब जाके दूसरा इवेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड योर इवेंट्स, ओके। अब जब इवेंट स्टार्ट होता है या एंड होता है एक पर्टिकुलर टाइम में होता है, जैसे 9 बजे स्टार्ट हुआ 10 बजे खत्म हो गया, तो वो क्या है? एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ओके। एंड इट डजंट रिक्वायर एनी रिसोर्स एंड टाइम, यहाँ पे कोई टाइम कंजम्पशन नहीं हो रहा। 10 बजे स्टार्ट हो गया, अब 9 बजे स्टार्ट हो गया, अब 10 बजे दूसरा इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे कोई टाइम भी नहीं लग रहा है, कोई रिसोर्स नहीं लग रहा है, इट ऑकर्स एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। टाइम कहाँ पे लग रहा है? ये वाला में, क्लास हम जो ले रहे हैं उसमें क्या लग रहा है? देखो हम पढ़ा रहे, लेबर दे रहे, एनर्जी दे रहे, लाइक, तो वहां पे रिसोर्स लग रहा है, ये जो पीपीटी बना रहे रिसोर्स लग रहा है, ठीक है, मटेरियल्स लग रहा है, मैन पावर लग रहा है और टाइम भी लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटी। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे, उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं, ओके। सो इवेंट का अगर पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट, इट इज द मोमेंट एट विच एन एक्टिविटी और टास्क स्टार्ट। देखो ये मोमेंट में एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये मोमेंट में एक्टिविटी खत्म हो गया, अब यहाँ से दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट होगा, ओके। एंड ऑल्सो इट रिक्वायर्स नो टाइम एंड रिसोर्सेस, ओके। रिसोर्सेस मतलब वही है 4M, मैन पावर, मनी, टाइम, तुम्हारा क्या क्या है? मैन पावर, मनी, तुम्हारा क्या था? 4M क्या क्या था? मैन पावर, मनी, मशीनरी और टाइम, राइट। सो दीज आर द रिसोर्सेस। दूसरा क्या है? इवेंट ऑकर्स इन एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो बोले थे ना 9 बजे स्टार्ट हो गया, फिर दूसरा इवेंट 10 बजे स्टार्ट हो गया, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ओके। सिग्निफिकेंट पॉइंट इन कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, कब कब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे प्लास्टरिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये दिन में ये प्लास्टरिंग चल रहा है, अब ये प्लास्टरिंग खत्म होने के बाद तुम्हारा व्हाइट वॉशिंग स्टार्ट हो गया, सो दैट इज एन इवेंट, ओके। एग्जाम्पल अगर पूछेगा तुम लोग का एमसीक्यूज में आ सकता है एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ऑप्शन दे देंगे या बोलेंगे कि इनमें से कौन सा इवेंट है देखो, या इनमें से कौन सा एक्टिविटी है, ठीक है। जस्ट याद रखना जब कुछ कंप्लीट होता है या जब कुछ स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इवेंट। जैसे देखो फाउंडेशन कंप्लीटेड, ठीक है, तो ये क्या हुआ? मतलब आज के दिन में 12 बजे फाउंडेशन कंप्लीट हो गया, राइट, सो वो है इवेंट। एक्सकवेशन कंप्लीटेड, आज के टाइम में 10 बजे एक्सकवेशन कंप्लीट हो गया, राइट, सो एक्सकवेशन कंप्लीटेड, तो दैट इज एन इवेंट। और इसको हम लोग इन द नेटवर्क डायग्राम भी इसको कैसे डिनोट करते हैं? सर्कुलर साइन विथ नंबर इनसाइड द सर्कल, ओके। जैसे ये है सर्कुलर साइन है और इसके अंदर नंबर देते हैं, ओके। और ये नंबरिंग का भी रूल्स होता है, वी विल सी। क्लियर? इवेंट क्लियर है? नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ इवेंट, ओके। कैसा कैसा टाइप का इवेंट होता है? फर्स्ट इवेंट है तुम्हारा टेल इवेंट। टेल इवेंट मतलब है देखो ये एरो जो है, एरो का हेड कौन सा होता है? ये इसको हेड बोलते हैं कि इसको टेल, इसको हेड बोलते हैं? बोलो, एरो का हेड किसको बोलते हैं हम लोग? इसको ना इसको? ऊपर का। ऊपर का, राइट। तो ये इवेंट कहाँ पे? देखो इसके टेल में है, राइट, एरो के टेल में है, सो दिस इवेंट इज द टेल इवेंट, ओके। तो ये वाला एग्जाम्पल एक देखते हैं तुम्हारा बर्थ, ठीक है, ये है एक काइंड ऑफ टेल इवेंट जहां से सब एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है। तुम पैदा हुए, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ टेल इवेंट। पैदा हुआ इस टाइम में, इस मंथ में, ये वाला डेट में, ये वाला टाइम में तुम पैदा हुए, दैट इज एन इवेंट, ओके। नाउ सेकेंड इवेंट इज व्हाट? डुअल रोल इवेंट। अब इसके देखो इधर में एरो का वो हेड भी है, इसमें एरो का टेल भी अटैच है, ठीक है। मतलब यहाँ से एक एक्टिविटी खत्म हो रहा है, यहाँ से एक एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम्पल एक देते हैं, इसको बोलते हैं मैरिज,
ठीक है, तुम्हारा जन्म हुआ, स्कूल वूल गए गए करे, चाकरी वाकरी किया, उसके बाद तुम्हारा शादी हुआ, ठीक है, इसके पहले बहुत सारा इवेंट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा शादी हुआ और तुम्हारा नया लाइफ स्टार्ट हो रहा है आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो ये जो मैरिज हुआ कि इतना मुहूर्त में तुम्हारा शादी हो गया, कंप्लीट हुआ, दैट इज अ डुअल रोल इवेंट। ओके, नेक्स्ट कम द हेड इवेंट, जो देखो एरो का जो हेड है वहां पे जाके तुम्हारा ये इवेंट अटैच्ड है। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है, योर डेथ, ठीक है, जहां पे जाके सब एक्टिविटी खत्म होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड द हेड इवेंट। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। ओके, वैसे तुम्हारा बहुत सारा प्रोजेक्ट में भी एक एग्जाम्पल देकर बोलेंगे कि किसको टेल बोलेंगे, किसको डुअल, ये सब आएगा। ओके, तुम लोग देखने से पता चलेगा, ठीक है। तो मेनली प्रोजेक्ट का क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन हेड एंड वन टेल इवेंट। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम जब बनाओगे तो एक ही टेल इवेंट होता है और एक ही हेड इवेंट होता है। मतलब बहुत सारा टेल इवेंट नहीं होता है, बहुत सारा हेड इवेंट नहीं होता है, एक ही होता है। मतलब एक ही स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, एक ही एंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे तुम्हारा बर्थ एक ही है, डेथ एक ही है, राइट। अब बीच में बहुत सारा कुछ आता रहता है, दोज आर द डुअल रोल। एग्जाम्पल क्या है, मैरिज है। ओके, सो ये सब हो गया है। स्कूल में जा रहे हो, स्कूल तुमने ज्वाइन किया, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डुअल रोल इवेंट, क्योंकि उसके पहले भी तुमने कुछ एक्टिविटी किया है, फिर उसके बाद भी तुम एक्टिविटी करोगे। सो दोज आर द डुअल रोल इवेंट्स। ओके, लेकिन प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक ही टेल एक ही हेड होना चाहिए। ये डायग्राम जब बनाते तब याद रखना है। ओके, जैसे और दो टाइप का इवेंट होता है, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं सपोज ये एक इवेंट हुआ तो डुअल रोल इवेंट है ये वाला, ठीक है। तो इसके पीछे वाला जो इवेंट है इसको हम लोग बोलते हैं प्रेडेसेसर इवेंट ऑफ इवेंट 2। मतलब इसके जो बोलते हैं ना पूर्वज, प्रेडेसेसर्स, ठीक है। मतलब तुम्हारे दादाजी ऐसे टाइप का, ठीक है। ये तुम हो तो ये तुम्हारे दादाजी हो गए, राइट। सो प्रेडेसेसर, सो प्रेडेसेसर ऑफ इवेंट 2 है कौन सा, इवेंट 1। अब तुम्हारे बच्चे हो गए, सक्सेसर जिसको बोलते हैं, राइट। तो दिस इज योर सक्सेसर। तो तुम्हारा इवेंट 2 का सक्सेसर कौन है, इवेंट 3 है। ओके, ये थोड़ा याद रखना है कि क्यों, बिकॉज जब हम ड्राइंग करेंगे, व्हेन वी विल ड्रॉ द इवेंट, तब देखना ये प्रीडेसेसर कभी दे देता है, कभी सक्सेसर दे देता है। तब तुमको ये याद रखना चाहिए कि प्रीडेसेसर मतलब कौन सा है, उसके पीछे वाला, और सक्सेसर मतलब कौन सा, उसके सामने वाला। क्लियर, क्लियर। अब देखो yes, इसके सामने और भी इवेंट हो सकता है, लेकिन ये क्या है, दिस इज द जस्ट बिफोर सक्सेसर, और ये वाला है जस्ट, सॉरी ये जस्ट आफ्टर सक्सेसर, और ये वाला क्या है, जस्ट बिफोर प्रेडेसेसर। ओके, जस्ट इसके एकदम इसके पीछे वाला जस्ट बिफोर प्रेडेसेसर, ये वाला एकदम इसके उसमें ही है, आगे ही है, जस्ट आगे है, तो उसको बोलते हैं जस्ट। अब इसके इधर भी तो और एक इवेंट हो सकता है, राइट, इस तरफ भी तो और इवेंट होता है, तो वो लोग भी सक्सेसर है। इसके पीछे भी और इवेंट हो सकता है, वो लोग भी प्रीडेसेसर है, लेकिन दिस इज द जस्ट बिफोर एंड दिस इज जस्ट आफ्टर। ओके, नाउ कम्स द एक्टिविटी, सेकेंड एलिमेंट। वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम लोग को इन मेनी केसेस, इन मेनी प्रॉब्लम दे विल गिव यू एक्टिविटी ओनली, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉब्लम में इवेंट दे देता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इवेंट क्या है, एक्टिविटी क्या है। एक एग्जांपल देते हैं, ये जो हम बोले ना पेंटिंग, तुम पेंटिंग ड्राइंग करने बैठे हो, राइट। सपोज 9 बजे तुमने पेंटिंग स्टार्ट किया, ठीक है। 9 बजे से लेकर 10 बजे तुम ड्राइंग कर रहे अब 10 बजे जाके तुम्हारा पेंटिंग खत्म हुआ, तो वो 2 इवेंट है। 9 बजे स्टार्ट हुआ, 10 बजे खत्म हुआ, 2 इवेंट। ओके, लेकिन बीच में जो एक्टिविटी कर रहे हो तुम, ड्राइंग कर रहे हो, उसमें क्या चल रहा है, मैन पावर चल रहा है, तुम्हारा एनर्जी तुम दे रहे हो, राइट, मैन पावर, तुम टाइम दे रहे हो, टाइम भी लग रहा है, 1 घंटा टाइम लगा। सो इट रिक्वायर्स टाइम एंड रिक्वायर्स रिसोर्स, पेंसिल, पेन, इरेजर, पेंटिंग, सब कुछ लग रहा है तुमको, राइट, रिसोर्स भी लग रहा है। सो दैट जो पेंटिंग चल रहा है, दैट इज द एक्टिविटी। 9 बजे पेंटिंग स्टार्ट हुआ, 10 बजे खत्म हुआ, दोज आर द इवेंट्स। whereas activity is what, any task or work which consumes resources and time, ठीक है। so this is actual execution of the project, जहां पे चल रहा है, ये याद रखना है। ओके, so time and resources are required for completion of the activity। example क्या है, excavate trench, ठीक है, ट्रेंच को एक्सकवेट करना है। ये देखो सेंटेंस में याद रखना, वहां पे क्या था, एक्सकवेशन कंप्लीटेड या एक्सकवेशन स्टार्टेड, दोज आर द इवेंट, ठीक है। अब एक्सकवेट ट्रेंच मतलब कर रहे हो, राइट, एक्सकवेशन हो रहा है। दूसरा क्या है, प्रिपेयर बजट, प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। मिक्स कॉन्क्रीट, ठीक है। अगर यहाँ पे मिक्स्ड हो जाता, ईडी हो जाता, तो वो क्या हो जाता, क्या हो जाता वो,
मतलब मिक्स्ड कंक्रीट, तुमने कंक्रीट मिक्स्ड कर दिया, कर चुका, राइट, कर चुके हो, सो दैट इज कंप्लीट, कंक्रीट इज कंप्लीट, मतलब वो एक इवेंट है, ओके। और यहाँ पे तुम मिक्स कर रहे हो, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट या कंक्रीटिंग, एक्सकवेशन, एक्सकवेटिंग, जब भी ऐसा टर्म आता है तो दीज आर द एक्टिविटीज, ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय द एरो साइन। इवेंट क्या था, सर्कल था, अंदर में नंबर था, और एरो क्या होता है, ये एक्टिविटी क्या होता है, एरो होता है और उसके ऊपर में लेटर होता है, जैसे ये ए, ठीक है, इवेंट 1, इवेंट 2, एक्टिविटी, ये जो एरो है इसके ऊपर हम ए बी सी डी जैसे भी करके डिनोशन दे देते हैं, ओके। सो नीड, टाइम्स एंड रिसोर्सेस, अगर इसको हम जनरल में लिखेंगे तो ये होता है आई इवेंट, जे इवेंट, दिस इज एक्टिविटी ए, और इसका ड्यूरेशन लग रहा है कितना, डी आई जे, मतलब आई से लेकर जे तक, आई इवेंट से लेकर जे इवेंट तक जाने के लिए जो टाइम लग रहा है, या एक्टिविटी, ये वाला एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है, दैट इज डी आई जे, ड्यूरेशन, ओके, क्लियर। तो दिस इज स्टार्टिंग इवेंट, ये वाला स्टार्टिंग इवेंट ऑफ एक्टिविटी है, ये फिनिशिंग इवेंट है, और दिस इज द ड्यूरेशन, ओके। नाउ सिस्टम ऑफ एक्टिविटी, देखो हम लोग का जनरली ये सिस्टम फॉलो करते हैं, जब भी नेटवर्क डायग्राम करते हैं वी फॉलो दिस सिस्टम, ओके। दिस इज व्हाट एरो, सॉरी, एक्टिविटी ऑन एरो, ए एक्टिविटी ऑन एरो सिस्टम, ठीक है, मतलब कि ये जो है एरो में हम एक्टिविटी बिठा रहे हैं, ठीक है। सो दिस एरो सिग्निफाइज द एक्टिविटी, एरो का मतलब है एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी ऑन एरो, ठीक है, ऐसे होता है। और एक सिस्टम होता है, जनरली हम लोग का ये ऐसा ही दिया रहता है, ओके, डायग्राम हमको ऐसा ही बनाना पड़ता है। और एक सिस्टम हो सकता है एक्टिविटी ऑन नोड्स, मतलब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे दिया, ठीक है, एक एरो करके फिर दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमको इवेंट देने का जरूरत ही नहीं, इसमें क्या है, देखो इवेंट हो रहा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, ओके। जैसे देखो ये वाला को, एरो को अब हमने ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया है, और बीच में जस्ट कम्युनिकेशन के लिए कि ए एक्टिविटी से बी एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, ए एक्टिविटी खत्म होकर बी एक्टिविटी खत्म होता है, मतलब ये वाला एरो का यही सिंबल है और कुछ नहीं, ठीक है। वेरेज यहाँ पे सर्कल है इवेंट, ये एरो है एक्टिविटी, ओके, इसलिए एक्टिविटी ऑन एरो, और ये वाला क्या है, नोड, इसको बोलते हैं नोड, ओके। तो नोड में हमने एक्टिविटी को बिठा दिया है, तो अब यहाँ पे नो नीड ऑफ इवेंट, इवेंट शो करने का जरूरत ही नहीं है, जनरली ये नहीं होता है हम लोग का प्रॉब्लम में, ऐसा वाला ही ड्रॉ करना पड़ता है, ओके। नाउ कम्स द प्रोजेक्ट, नेटवर्क का एक एग्जांपल, ठीक है, ऐसा ड्रॉ करना पड़ता है हम लोग को। इट इज इजी है अगर तुम सब रूल्स फॉलो करके करोगे जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, नो सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में, तो वी कैन इजीली ड्रॉ दिस डायग्राम, ओके। तो इसमें एक्टिविटी कौन कौन सा है बोलो तो, कितना से how many activities are there and how many events are there? कितना एक्टिविटी है और कितना इवेंट है बोलो। इसमें कितना, ये प्रोजेक्ट नेटवर्क में कितना एक्टिविटीज है मैम? 5 एक्टिविटीज। यस, ए बी सी डी ई, राइट, देयर आर 5 एक्टिविटीज, ओके, एंड हाउ मेनी इवेंट्स, 5 इवेंट्स, 1 2 3 4 5, ओके। अब सी यहाँ पे जो नंबरिंग दिया है ना, ये इसका भी रूल्स है, ओके, वी विल सी क्या क्या रूल्स है, कैसे हम ये मतलब यहाँ पे क्या रैंडमली 1 3 4 ऐसा बिठा दिया, नहीं, रूल्स फॉलो करके बिठाया गया है, ओके, वी विल सी। तो हियर these are the activities and these are the durations, okay, ऐसे दे देता है, या कभी कभी a,2 b,3 ऐसे करके भी दे देता है, ओके। तो वो जो भी नंबर में है, इंटीजर में रहेगा, नंबर रहेगा, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी, ओके, कि 3 दिन में खत्म होगा ये वाला एक्टिविटी, ये 2 दिन में, ये 3 दिन में, ऐसा। So these are number of activities and number of events, okay. Now types of activities, एक ये नेटवर्क डायग्राम में हम अगर देखेंगे, जैसे हम इवेंट्स बोले थे ना, सक्सेसर इवेंट, प्रीडेसेसर इवेंट, वैसे एक्टिविटीज भी होता है, सक्सेसर एक्टिविटीज, प्रीडेसेसर एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट में देखो तो ए क्या है, ए क्या लग रहा है, ए किसका सक्सेसर है ना कि प्रीडेसेसर है, ए एक्टिविटी, या हम बोलो तो बी एक्टिविटी का सक्सेसर कौन है, बी एक्टिविटी का प्रेडेसेसर कौन है,
प्रेडिसेसर मतलब तुम्हारे दादाजी, पूर्वज, ओके। सक्सेसर मतलब तुम्हारे सन, सक्सेसर, ऐसा करके याद सकते हो, ओके। तो बोलो पी प्रेडिसेसर पापा, सक्सेसर सन, ठीक है। सपोज दिस इज यू, बी का प्रेडिसेसर ए होगा। यस, बी का प्रेडेसेसर जस्ट बिफोर प्रेडेसेसर इज ए और बी का जस्ट आफ्टर सक्सेसर इज सक्सेसर बी, बी होगा। ठीक है। लेकिन हम लोग जब डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, जब ये तुमको बोलेगा ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, तब जनरली सक्सेसर नहीं रहता है, हमको प्रेडेसेसर देखकर ही ड्राइंग करना पड़ता है, ठीक है। प्रेडेसेसर को जैसे हम लोग फैमिली ट्री जब बनाते हैं तो क्या बच्चे से करते हैं? नहीं, बूढ़े से करते आते हैं ना, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। वैसे ही हम लोग का पीछे वाला का एक्टिविटी देख देख के ड्रॉ करना पड़ता है, ये वाला भी, ओके। बट फॉर नॉलेज तुमको ये याद रखना है कि कौन सा, कभी कभी सक्सेसर का भी देख कर भी बोलेगा कि बनाओ डायग्राम बनाओ, ओके। लेकिन मैक्सिमम प्रेडेसेसर ही होता है। तो A is what? A is just before predecessor of, sorry, B and C होगा, ये वाला B and C है, ओके। D कर दिया हम, B and C। ये देखो B और C का जस्ट बिफोर प्रेडेसेसर है, ठीक है। दोनों का एक ही प्रेडेसेसर है, ठीक है। जैसे तो सपोज तुम्हारे भाई और तुम्हारा तुम, भाई और तुम, राइट, वैसा। B is what? जस्ट बिफोर प्रेडेसेसर ऑफ D, ठीक है। C is what? just before predecessor of E, right? A is the starting activity of the project। इसको हम लोग बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट बोलते हैं हम? बिकॉज इसके पीछे वाला कोई प्रेडेसेसर नहीं है, मतलब ये अकेला ही स्टार्ट हो रहा है, राइट। इसको स्टार्ट होने के लिए पीछे वाला का एक्टिविटी खत्म होगा तब जाके ये स्टार्ट होगा, वैसा नहीं है। जैसे B कब स्टार्ट होगा? जब A खत्म होगा। C कब स्टार्ट होगा? जब A खत्म होगा, राइट। जैसे D कब स्टार्ट होगा? जब A B दोनों खत्म होगा, राइट, तभी ये सब होता है। तो दीज आर डिपेंडेंट। D इज डिपेंडेंट ऑन B, ठीक है। E इज डिपेंडेंट ऑन C एंड B एंड C आर डिपेंडेंट ऑन A। लेकिन A का कोई प्रेडेसेसर नहीं है, राइट, वो अकेला ही स्टार्ट किया है, तो क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट। इसको हम लोग इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। तो इसका प्रेडेसेसर कुछ नहीं है, ब्लैंक रहता है, ओके। तो हम लोग इसको बोलते, देखो, नो प्रेडेसेसर फॉर ए, सो इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये जब डायग्राम में आएगा देखना, इंडिपेंडेंट कौन सा है? जिसका कोई प्रेडेसेसर नहीं होता, उसको इंडिपेंडेंट हम बोलते हैं। मतलब दोज आर द स्टार्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अगर यहाँ पे और एक एक्टिविटी होता है जिसका कोई प्रेडेसेसर नहीं होता, यहीं से और एक स्टार्ट होता है, ओके। अब इसमें से बोलो तो कौन सा टेल इवेंट है, कौन सा हेड इवेंट है इन दिस एक्टिविटी? ये डायग्राम में कौन सा तुम्हारा टेल इवेंट है, नंबर बोलो, और कौन सा हेड इवेंट है? इवेंट क्या है? जो सर्कल है उसके अंदर जो नंबर है, दोज आर द इवेंट्स, राइट। तो यहाँ पे स्टार्ट टेल इवेंट कौन सा है? मैम नंबर 5 टेल इवेंट और नंबर 1 हेड इवेंट। नहीं, गलत। एरो देखो, एरो का नंबर 1, अगर तुम बोल रहे हो हेड हो, एरो का हेड किधर है? एरो का हेड तो ये है, एरो का टेल में ये वाला है ना, सो दिस इज टेल इवेंट, ओके। एंड एरो का देखो हेड में ये वाला है, तो दिस इज हेड इवेंट। एंड एज आई सेड कि नेटवर्क में एक ही टेल इवेंट होना चाहिए और एक ही हेड इवेंट होना चाहिए, ओके। नेटवर्क डायग्राम ऐसा बनाना है कि एक ही टेल और एक ही हेड होना चाहिए। जैसे एक ही जन्म है, बर्थ है, एक ही मृत्यु है, राइट। एक बारी तुम जन्म पैदा होते हो, एक बारी मरते हो, ओके। सो ऐसा है। सो फॉर ड्राइंग हम लोग को प्रेडेसेसर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है विथ क्या बोलते हैं, कंपेयर टू द सक्सेसर, ओके। प्रेडेसेसर से हमको ड्राइंग बनाना पड़ता है। क्लियर? इतना दूर तक क्लियर है? एनी डाउट? तो मैम हार्ट डायग्राम में अगर वो एरो का हेड जिस तरफ रहेगा उसी तरफ हेड होगा क्या? बोलो। एरो का हेड जिस तरफ रहेगा उसी तरफ से हेड निकलेगा क्या? उसी तरफ हेड होगा? हाँ, हेड इवेंट। हाँ, अच्छा, ठीक। देखो एक ही है यहाँ पे, देखो 2 3 4 दीज आर द डुअल इवेंट, ओके, डुअल रोल इवेंट। वेयर एज एक ही टेल इवेंट है,
और एक ही हेड इवेंट है, जहाँ पे मल्टीपल टेल इवेंट नहीं हो सकता है नेटवर्क डायग्राम में, और मल्टीपल हेड इवेंट भी नहीं हो सकता है। ओके, अच्छा, जैसे यहाँ पे डुअल देखो, 3 ठो डुअल है, राइट, हाँ हाँ, वो चलेगा, लेकिन टेल एक ही होना चाहिए और हेड भी एक ही होना चाहिए। ओके, ओके, मतलब एक से ही स्टार्ट होगा, एक पर ही जाके सब खत्म होगा। ओके, नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज योर रूल्स। ये अगर याद रख पाओगे तो इजीली तुम डायग्राम बना पाओगे। ओके, सो रूल्स टू ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क। फर्स्ट क्या है रूल? देयर शुड बी सिंगल एरो फॉर एवरी एक्टिविटी, मतलब एक ही एरो होना चाहिए। जैसे देखो, ए एक्टिविटी का एक ही एरो है, यहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, राइट, मतलब कि एक एरो का मतलब है एक ही एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे 2 दिया तो देखो 2 अलग अलग एक्टिविटी है। ओके, तो सिंगल एरो फॉर सिंगल एक्टिविटी। ओके, एवरी एक्टिविटी शुड हैव स्टार्ट एंड एंड नोड्स। नोड्स को किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं नोड्स। ओके, इसका क्या बोला है कि एक एक्टिविटी का ये एरो, क्या बोल रहे, एरो इट इज एक्टिविटी को डिनोट करता है, ठीक है। ये एक्टिविटी का क्या होना चाहिए? स्टार्ट एंड भी होना चाहिए, और स्टार्ट नोड भी होना चाहिए, और एंड नोड भी होना चाहिए। मतलब इसका जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे एक नोड होना चाहिए, जहां पे खत्म होगा वहां पे भी एक नोड होना चाहिए। डायग्राम ऐसा होना चाहिए। ओके, तो बोलो ये क्या करेक्ट है? ये डायग्राम करेक्ट है? इसका स्टार्ट और एंड दोनों ही है? नहीं, इसका सिर्फ क्या है? स्टार्ट है। ऐसा अगर तुम ड्राइंग करके छोड़ दोगे प्रोजेक्ट डायग्राम में तो ये गलत होगा। ओके, अब ये वाला भी देखो, इसका क्या है? फिनिशिंग नोड है, स्टार्ट नहीं है, एंड, हाँ स्टार्ट नहीं है, तो ये भी गलत है। तो एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए। ओके, स्टार्ट होना चाहिए और एंडिंग नोड होना चाहिए। ओके, डायग्राम में ऐसे तुम नहीं छोड़ सकते। दूसरा क्या है? प्रोजेक्ट शुड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। से फॉर एग्जांपल देखो, तब एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है? फ्रॉम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट, सॉरी लेफ्ट से राइट, इधर क्या दिया हम? राइट टू लेफ्ट दिया है हम, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, हाँ। देखो ये एरो भी जा रहा है लेफ्ट से राइट में, ये भी जा रहा है लेफ्ट से राइट में, ये भी जा रहा है लेफ्ट से राइट में, ये भी लेफ्ट से राइट में। देखो ये फ्लो किस तरफ कर रहा है? फ्लो लेफ्ट से पूरा राइट की तरफ, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, डायग्राम ऐसा बनाओगे। जनरली लेफ्ट टू राइट ही होता है, ठीक है। तो वही बोला गया है, दिस इज द थर्ड रूल कि लेफ्ट से राइट की तरफ होना चाहिए प्रोजेक्ट का फ्लो। ओके, प्रोजेक्ट शुड हैव ओनली वन स्टार्ट एंड वन फिनिश नोड, ठीक है। ये क्या है? ये प्रोजेक्ट में एक एक्टिविटी भी हो सकता है, बहुत सारा एक्टिविटी भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे एक्टिविटी का एक नोड फिनिश और स्टार्टिंग होना चाहिए, वैसे होल प्रोजेक्ट का भी एक टेल इवेंट, एक हेड इवेंट, मतलब टेल इवेंट का है तुम्हारा स्टार्ट इवेंट बोलते हैं, और हेड इवेंट को हम लोग फिनिश इवेंट बोलते हैं। ओके, सो स्टार्ट और एक स्टार्ट नोड होना चाहिए और एक फिनिशिंग नोड होना चाहिए। अब बोलो इनमें से कौन सा करेक्ट है? विच डायग्राम इज करेक्ट, फर्स्ट और सेकेंड? ये एक प्रोजेक्ट हुआ, प्रोजेक्ट का डायग्राम है, नेटवर्क डायग्राम। ये भी एक दूसरा प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम है, ठीक है। एज पर दिस रूल, फोर्थ रूल, कि एक ही स्टार्ट इवेंट होना चाहिए और एक ही फिनिशिंग इवेंट होना चाहिए, मतलब एक ही टेल इवेंट होना चाहिए, एक ही हेड इवेंट होना चाहिए, राइट। अब बोलो इसमें से कौन सा करेक्ट है? ये वाला, फर्स्ट वाला, ना सेकेंड वाला? फर्स्ट था। यस, फर्स्ट। देखो इसका एक ही टेल या स्टार्ट इवेंट है, इसका एक ही हेड या फिनिशिंग इवेंट है, लेकिन इसमें क्या देखो 1 2 3 तो टेल इवेंट है, मतलब 3 तो स्टार्ट इवेंट है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम। ओके, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। तो तुम्हारा डायग्राम ऐसा होना चाहिए, जिससे एक प्रोजेक्ट, फुल प्रोजेक्ट का एक ही स्टार्ट इवेंट और एक ही फिनिशिंग इवेंट। ओके, नाउ टू एक्टिविटीज शुड नॉट हैव कॉमन स्टार्ट एंड एंड नोड्स। देखो ये यहाँ से एक टर्म आता है डमी एक्टिविटी, वो क्या होता है वी विल सी। एक एग्जांपल देते हैं, देखो एक्टिविटी ए है, ये सब एक्टिविटी कॉलम है, दिस इज द प्रेडिसेसर, ठीक है। अब बोलो ये एक्टिविटी ए का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, तो ये क्या इवेंट है, सॉरी ये क्या एक्टिविटी है? बी का भी कोई प्रेडिसेसर नहीं है, तो ये वाला एक्टिविटी कौन सा है? जिसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, वो एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? ये क्या देखो,
यहाँ पे ए एक्टिविटी का कोई प्रेडेसेसर, मतलब पीछे कोई प्रेडेसेसर नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग एक्टिविटी या इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, राइट। तो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या है, दिस इज ऑल्सो अ स्टार्टिंग, दोनों ही स्टार्टिंग एक्टिविटीज है, ठीक है, और दोनों ही इंडिपेंडेंट है। मतलब कि सपोज ये फर्स्ट इवेंट, तुम लोग का जो टेल इवेंट है, फर्स्ट स्टार्टिंग इवेंट एक ही होना चाहिए, राइट, तो हमने एक ही ड्रॉ किया है। अब यहीं से तुम्हारा ए स्टार्ट होगा, यहीं से तुम्हारा बी स्टार्ट होगा। देखो इसके पीछे भी कोई नहीं है, इसके पीछे भी कोई नहीं है, राइट, तो बोथ आर इंडिपेंडेंट और बोथ आर स्टार्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर, क्लियर है? तो ये यस मैम, ऐसे ड्रॉ करना है, ओके, कंफ्यूज मत हो जाना। पहले एक ही इवेंट बनाओ, टेल इवेंट एक ही बनाओ, ठीक है, क्योंकि हमको पता है एक ही स्टार्टिंग इवेंट या टेल इवेंट होना चाहिए, तो एक बना दिया। अब यहाँ से देखो क्या क्या स्टार्ट हो सकता है, जिसमें डैश डैश है, मतलब दीज आर द स्टार्टिंग एक्टिविटीज, मतलब ये फर्स्ट इवेंट से ही दोनों स्टार्ट होना चाहिए। कर दिया, ड्राइंग कर दिया, ओके। अब देखो दूसरा क्या है कि अब सी एक्टिविटी कब स्टार्ट हो रहा है, जब प्रेडेसेसर, सी का प्रेडेसेसर क्या है, ए और बी, मतलब सी के पहले ए और बी होगा, तब जाके सी स्टार्ट होता है, ओके। सो ये कैसा दिखने में होगा, ऐसा, ठीक है। देखो ए और बी दो, दीज आर व्हाट, सी का प्रेडेसेसर, सी के पिछले वाला, जस्ट बिफोर प्रेडेसेसर, राइट। तो देखो ए और बी खत्म होगा तभी जाके तुम्हारा सी स्टार्ट होगा। क्लियर, ये डायग्राम क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो ऐसा केस हो सकता है, मतलब कि एक इवेंट से बहुत सारा एक्टिविटी एक्सपैंड कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। जैसे देखो यहाँ पे 2 एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, ओके है, करेक्ट है, ठीक है। ये भी केस हो सकता है कि बहुत सारा एक्टिविटी एक इवेंट में जाके मिल जाए, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ओके। लेकिन यहाँ से क्या दिया है, देखो कि 2 एक्टिविटी, 2 या 3 एक्टिविटी जो भी है, के शुड नॉट हैव कॉमन स्टार्ट एंड कॉमन एंड पॉइंट। अब देखो ये 1 क्या है, 1 इवेंट इज द कॉमन स्टार्ट फॉर ए एंड बी, ठीक है, और ये जो 2 इवेंट क्या हो रहा है, कॉमन एंड ऑफ द ए एंड बी, ठीक है। तो ये ए और बी 1 कॉमन एंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कॉमन इससे स्टार्ट हो रहा है, इवेंट से स्टार्ट हो रहा है, और कॉमन इवेंट में जाके हमारा मर्ज हो रहा है, राइट, एंड हो रहा है। सो ये नहीं होना चाहिए, शुड नॉट, ठीक है। तो अगर ऐसा केस हो गया, देखो एक से स्टार्ट हो रहा है ये वाला, बी भी एक इवेंट से स्टार्ट हो रहा है, अब ये खत्म हो रहा है 2 इवेंट, 2 नंबर इवेंट में, बी भी 2 नंबर इवेंट में जाके खत्म हो रहा है। सो सेम स्टार्ट नोट फॉर ए एंड बी, सेम एंड नोट फॉर ए एंड बी। सो दिस इज रॉन्ग एज पर द रूल्स। ऐसा ड्राइंग तुम नहीं कर सकते। नेटवर्क डायग्राम में जब भी ऐसा आएगा तो वो तुम अगर ऐसा ड्रॉ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से लग रहा है ना हम लोग का ये गलत होगा। देखो एज पर द नेटवर्क डायग्राम, एज पर दिस, ये जो एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग का क्या होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ए और बी स्टार्ट होके यहाँ पे जाके खत्म हो गया, ठीक है, बी भी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे जाके खत्म हो गया है, ओके। सो ये है ए इवेंट, ये है बी इवेंट, सॉरी ए एक्टिविटी बी एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ से जाके तुम्हारा सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है। एज पर दिस एग्जाम्पल डायग्राम ऐसा होना चाहिए था, कि नहीं चाहिए था, बोलो। डायग्राम ऐसा होता तो जैसे ये वाला देखो यहाँ से सी स्टार्ट होगा अब, ठीक है, ये 3 नंबर है इवेंट है 3, ये है सी। सो एज पर दिस, ये एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग का नेटवर्क डायग्राम ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले बोलो। देखो ए और बी के पीछे कोई नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, और सी के पीछे कौन होना चाहिए था, ए एंड बी। देखो सी के ठीक पीछे ए भी है, बी भी है, राइट। तो ये क्या करेक्ट है, इज दिस करेक्ट? इसका डायग्राम तो ऐसा होना चाहिए था ना, लेकिन ये इनकरेक्ट है। क्यों? बिकॉज हम बोले थे
दे टू एक्टिविटीज शुड नॉट हैव कॉमन स्टार्ट एंड कॉमन एंड नोड्स। इसका भी 1 ये दोनों का ही कॉमन है, 2 भी दोनों का ही कॉमन है, तो ये गलत है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर तुम लोग को बोलेगा डायग्राम करो तो कैसे करोगे? तब तुम्हारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तब आ रहा है ये जो हो रहा है, दिस इज व्हाट गलत। ओके, टू एक्टिविटीज शुड नॉट हैव कॉमन स्टार्ट एंड कॉमन एंड नोड्स। सो इन दैट केस तुम लोग का आ जाएगा एक डमी एक्टिविटी। ठीक है, डमी एक्टिविटी मतलब है, डमी हम किसको बोलते हैं? पुतला को बोलते हैं, तो जो रियल नहीं है, जो अनरियल है या इमेजिनरी है, डमी जिसको उसको तो बोलते हैं ना। तो यहाँ पे भी एक एक्टिविटी हम बिठाएंगे विच विल बी इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब है वो उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, उसमें कोई मैन पावर रिसोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, एक इमेजिनरी जस्ट हम एक्टिविटी वहां पे बिठा देंगे। तो कैसे बिठेगा? से फॉर एग्जाम्पल देखो, ये सेटिस्फाई कर रहा है ए का कोई इंडिपेंडेंट, ए इज इंडिपेंडेंट और वी कैन से दिस इज द स्टार्टिंग एक्टिविटी, बी इज आल्सो द स्टार्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये स्टार्टिंग इवेंट है, राइट? दिस इज अ टेल इवेंट। ओके, हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया। सपोज यहाँ पे अगर हम इवेंट 2 बिठा देते हैं, ओके, इवेंट 2। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि सी, ऐसा करना है कि सी कहाँ से स्टार्ट होगा? जब ए और बी दोनों खत्म होगा, एक साथ खत्म होगा, तब जाके सी स्टार्ट करेगा। ओके, तो इसके लिए हम बीच में क्या बिठा दे? देखो, डमी एक्टिविटी। ठीक है, अब बी से ये डमी एक्टिविटी दे के यहाँ पे ज्वाइन किया, ए भी यहाँ पे जाके खत्म होगा। ये डमी का मतलब क्या है? कोई टाइम नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, जस्ट इमेजिनरी एक एक्टिविटी हम बिठा दे। तो हम इसको बोल सकते हैं कि बी एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, क्योंकि इसका टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं लग रहा है, राइट? वी कैन से दैट, कैन वी से कि बी एक्चुअली 1 से स्टार्ट होके 3 में खत्म हो रहा है। बोल सकते हैं ना हम लोग? यस मैम। यस, अब देखो यहाँ से सेटिस्फाई कर सकता है। देखो अब सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जब ए और बी खत्म हो रहा है, तब जाके तुम्हारा सी स्टार्ट हो रहा है। मतलब सी का प्रेडेसेसर क्या है? ए है एंड बी है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, प्लस ये भी, ये सेटिस्फाई, ये वाला रूल भी सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों का स्टार्टिंग इवेंट कौन सा है? ए है, ठीक है, लेकिन फिनिशिंग इवेंट या एंड इवेंट सेम नहीं है। बी का फिनिशिंग इवेंट 2 है, ए का फिनिशिंग इवेंट क्या है? 3 नंबर है, राइट? दोज आर दी, ये दोनों कॉमन इवेंट नहीं है, लेकिन बीच में एक हम डमी एक्टिविटी दे दिया, जिससे लगेगा कि बी एक्चुअली 1 से स्टार्ट होके 2 में खत्म होके 3 में जा रहा है। ओके, जिसमें कोई टाइम ही नहीं लग रहा है, राइट? तो हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअली बी भी यहीं पर जाके खत्म हो रहा है। ओके, तो इट इज सेटिस्फाइंग बोथ द केसेस। तुम्हारा एग्जाम्पल भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, एक ये केस हो सकता है, और एक बार ऐसे भी तुम लोग ड्राइंग कर सकते हो। ये सेम हो गया है, अब यहाँ पे सेकेंड इवेंट बिठा दो। अब डमी कहाँ पे जाएगा? डमी एक्टिविटी कहाँ पे जाना चाहिए? ऊपर, साइड में, बगल में, नीचे, कहाँ पे? डमी एक्टिविटी का एरो किस तरफ होगा? अब हम लोग डमी एक्टिविटी किस तरफ ड्रॉ करेंगे? 2 से बी तक। हाँ, नीचे की तरफ, राइट? तो अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे फिनिश हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम नहीं लग रहा है। मतलब हम देख सकते हैं कि ए जाके यहाँ पे मर्ज हो रहा है, ओके, और बी 1 से जाके 3 में स्टार्ट हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका फिनिशिंग इवेंट 2 है, इसका फिनिशिंग इवेंट 3 है, अलग अलग है। ठीक है, बट इमेजिनरी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका सिंस यहाँ पे कोई टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 3 नंबर एक्टिविटी या 3 नंबर इवेंट, मतलब सॉरी, ये सी वाला इवेंट ए जब खत्म होगा और बी जब खत्म होगा तब जाके स्टार्ट हो रहा है। ओके, क्लियर है ये वाला? यस मैम। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ डमी एक्टिविटी। ओके, कितना बजा अभी? ठीक है, अभी इतना दूर तक ही करते हैं हम लोग। ओके,
और भी रूल्स है, वी विल सी। डमी एक्टिविटी क्या है? इट इज एन इमेजिनरी एक्टिविटी, नो एग्जिस्टेंस ऑन रियल, कंज्यूम्स नो रिसोर्स एंड टाइम, मतलब DIJ तो उसका 0 हो जाएगा। यूज टू सेटिस्फाई द प्रीडेसेसर रिलेशनशिप, मतलब ये जो प्रीडेसेसर रिलेशनशिप, देखो सी का प्रीडेसेसर A और B दोनों ही है, लेकिन ये वाला तो नहीं चलेगा, तो हम यहाँ पे दे रहे डमी एक्टिविटी, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों ने ये वाला दिया है। ओके, प्रीडेसेसर वाला केस को सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरा क्या है? एनी नंबर, तुम जितना नंबर किसी का डमी एक्टिविटी दे सकते, बट इफ ओनली इट इज रिक्वायर्ड, अननेसेसरी देने का जरूरत नहीं है। ओके, सो नो टाइम एंड नो रिसोर्स, यहाँ पे कोई भी टाइम ये सब नहीं लगता है, सो दिस इज अ डमी एक्टिविटी। ओके, ठीक है, अभी इतना दूरी करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द अदर रूल्स एंड सी हाउ टू ड्रॉ, एक्चुअली में कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, फॉलोइंग ऑल दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, ठीक है, ओके मैम। ओके, ठीक है देन, थैंक यू। थैंक यू मैम।